hello, namaste, good morning, good afternoon, or good evening, whichever part of the world you are joining us from live. My name is Deepak Khemani, and I am a co founder of Bloom. Bloom is the brainchild of Miss Payal Irani. Bloom is a flower that has blossomed and is spreading its fragrance across the globe. At Bloom, we are into physical and mental wellness, trainings, and speaking engagements, and creating signature workshops for corporates and individuals wanting to go to the next level. At Bloom, we will be catering to each and every aspect of an individual where, through these masterpieces, our signature programs, a person can go to the next level. Bloom has a powerful and a dynamic team which has been handpicked. They are the who's who in their respective domains and industry veterans having an accumulated 200 plus years of experience specializing in their own field. At Bloom, we strongly believe in co creation, collaboration, and teamwork. I invite each and every one of you to be a part of Bloom, where together we grow, and as Bloom blossoms, it spreads, ripples the world over. Let me introduce my co-host, Mr. KV Premraj. Premraj is a futurist. He speaks on employee engagement, leadership, and management. He is the co-author of 4 books, all 4 of which hit the #1 bestseller spot on Amazon. The latest one, which was released just less than a month ago. Premraj has spent 37 years in the banking and financial services space, with experience both in public and private sector. He was the CEO of the BPO arm of a leading private sector bank in India. On our show today, we have a dynamic personality. I asked Premraj to introduce her and take this session forward. Over to you, Premraj. Thank you, Deepak. Thank you for that very kind introduction. Yes, we have on the show a very, very dynamic personality in Archana Agnihotri. A person who is wedded to see every person lives with dignity. She's a software engineer who has studied and worked in the United States of America. She's also traveled to Nepal, Japan, Singapore, Malaysia, Thailand, and Myanmar. And of course, India, large parts of India. She runs an NGO, Samadhan Abhiyan. More about it, she will enlighten us. Archana has conducted awareness on POSCO, which is the prevention of children from sexual offenses, for over 50,000 people. That's a huge amount of people. Talking about child abuse victims, the first name that springs to mind is of Oprah Winfrey. While researching for this session, I came across Oprah Winfrey's book, What Happened to You? In this book, Oprah shares stories of her own harrowing childhood and how she made peace with her past. One sentence from the 301 pages book that stood out for me, and I quote, "Most of the struggle I endured as a child resulted in trauma that would define many relationships, interactions, and decisions in my life." Unquote. Archana, I'm sure you will have many more such Indian stories to relate. For the next 45 minutes or so, let us hear from Archana Agnihotri more about her mission in life, primarily on the POSCO front. Over to you, Archana. Thank you. Thank you, Premraj. It was such a warm welcome. And Our privilege. I'm humbled the way you are putting so beautiful words for me. Really, thanks a lot. और सबसे My privilege. थैंक यू। सबसे ज्यादा खुशी की बात ये हो रही है कि आप जैसे अच्छे लोगों से मिलके
हम लोगों की जो मुहिम है अपने देश को आगे बढ़ाने की, हम लोग मिलके, मुझे पूरा विश्वास है जल्दी ही हम लोग का देश परेशानियों से निकल के बाहर आएगा। इसी उम्मीद के साथ हम चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज पे काम कर रहे हैं। चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज ही क्यों चुना है, उसकी वजह है, अगर हम लोग देखें तो हम लोगों का देश नेचुरल रिसोर्सेज में दुनिया के टॉप 10 कंट्रीज में आता है। ह्यूमन रिसोर्सेज अगर देखें तो हम लोग टॉप 3 कंट्रीज में है। क्लाइमेट अगर देखें तो वी हैव वन ऑफ द बेस्ट क्लाइमेट्स ऑफ द वर्ल्ड। So we have all the best resources in our country. But when it comes to the global growth index, we are starting somewhere from the bottom. That is something which everybody feels that why is this so? हर कोई सोच रहा है, जिससे भी बात करिए, जो पढ़े लिखे सब, जिसको भी समझ है थोड़ी सी, जिसने इस चीज को जान लिया है, सबको इस बात की चिंता हो रही है कि कमी कहाँ पे रह गई है। इसी वजह से हम लोग जब अमेरिका में भी थे तो हम लोग को वहां पे भी ही लगता था कि यहाँ पे भी दो ही हाथ पैर के लोग हैं जैसे इंडिया में। दे आर नॉट एलियंस, दे आर द सेम ह्यूमन बीइंग्स एज वी आर इन इंडिया। देन हाउ कम दे आर एबल टू ग्रो देयर? हम लोग ज्यादा रिसोर्सेज रखते अपने पास। इसी वजह से मैं जॉब छोड़ के इंडिया आई हूँ और मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ आ गए थे। हम लोग, ही वाज फ्रॉम IIT। We studied a lot, did a lot of things, and we found out that child sexual abuse is one of the major reasons that we have the gap of performance from what we have and what we are able to deliver. And that's why I have taken this topic. Although everybody has suffered, including me, the child sexual abuse in the childhood, very few must be spared. They are the lucky ones. We should not, it's good that they are spared. But I want not a single child to be suffering from sexual abuse anymore. This is my objective. We conduct POXO awareness workshops. We conduct it for individuals, we conduct for communities, for societies. The reason being, we equip everyone with prevention and intervention skills to reduce the instances first. Because we have to think and decide, because one person or one team cannot do everything, so we will have to take our roles. We work with rape survivors and child sexual abuse survivor children also. We believe in creating awareness without any discrimination of religion, region, caste, creed, or gender. This is how we are working on it. When we work on child sexual abuse, we conduct awareness workshops. We are empaneled with so many organizations to conduct awareness workshops. Few of them are IIT Delhi, Army Public Schools in Lucknow, American Embassy School in Delhi, Chain of City Montessori Schools in Lucknow, Saroj Hospital, DCPCR, Delhi Commission for Protection of Child Rights, Prayas Foundation, Delhi Police. Other than we are empaneled with, we have conducted workshops for NCC cadets, different government agencies, NGOs in 5 states we have conducted workshops for. We have conducted workshops and worked with AIMS Delhi. We conduct workshops for banks, IIIT Delhi, Jeetu Foundation, just to name a few. We have created around 53,000 child sexual abuse preventing volunteers. Each volunteer has created awareness for 5 people. That is the oath they took, and they worked on it also. In 2018, we conducted a national record. We did not know that child sexual abuse is still less talked so much that only 2,000 people got collected in Connaught Place of Delhi. And the Deputy CM of Delhi, Manish Sisodia, led the oath program, and it created a national record. India Book of Record told us and gave us the certificate nobody has till date took an oath in such large number together to prevent child sexual abuse. This is the volume we are talking, that interest on this topic is so less. So people like you and me, we should keep working quite a bit to reach there where we are supposed to reach and make our country what it's supposed to be. We have launched an app called Meri Awaaz in 2019, July. It was launched by NCPCR chairperson, DCPCR chairperson, Deputy CM of Delhi,
and all the good people who are concerned about children. This app was a gift, is a gift actually, from IITians who passed out after working with us. And we really thank Chetan Sagare, who was the head of that group, who gifted us this app. This app is remarkable and really amazing. First thing is it's first of its kind app, which is focused on prevention by awareness of child sexual abuse. It is very user-friendly. Graphics are very simple. Vocabulary is appropriate to the age and the group. The best part of this app is reporting part. It works offline as well as online also. That usually what happens with apps, either it works online and offline, it is quite cumbersome, but not in this app. It is online live messaging or live information reporting card. And that is a very big thing in this app. Second important part of this app is that if any call is made by this app, even a missed call, action is taken. Till date, 100% response and solution rate has been through this app. Whatever complaints went through this app has been resolved to the solution. So that is the best part. And how does it happen? Once a call is triggered, email goes to so many departments who are who are into child protection, that accountability is cross-sectional and it starts acting. And that is the best part of it. Another very important feature which all of you must be knowing about, because in POCSO, anonymous reporting is the law. You can report anonymously. We have that feature in this app also. And this feature is really working wonders. I want to share a story about it. I was conducting workshop in a slum for teenager girls in Delhi. And I was telling them about child sexual abuse and its effect. Then they told me that the goon of the slum, you know, every slum has one goon, is a not only film, it's a reality on the ground. And they told us that the goon harasses them quite often. I asked them, why don't they call the police? They said, if we call the police, police will harass us instead of stopping him. Then I suggested them, because I was going to tell them about that anyway. So I explained them and I trained them how to make anonymous calls. So next time when it happened, sure enough, they used the app and police came and arrested that goon. The funny part was neither police knew who complained nor goon knew. So police advised the goon, because they are friends, that भैया माफी मांग लो जिससे भी तुमने किया है कुछ, जिससे वो कंप्लेंट वापस ले ले, क्योंकि पॉक्सो में अरेस्ट इज इनएविटेबल. पॉक्सो मींस अरेस्ट विल बी देयर. उस गुण ने उस दिन सबसे माफी मांगी और लड़कियों का मुझे फोन आया शाम को, मैडम 16 साल की जिंदगी में पहली बार हम लोगों ने इस गुंडे को झुकते देखा है हम लोग के सामने. And that was the day I was getting goosebumps. Even today when I talk about it, I do it. It's really such a feeling that without, I mean, they did not know any self-defense, they didn't have to fight, they didn't have to come in picture, but the action happened and they got relief. So it is a hot cake in that slum. Right now, this app is not on Google Play Store, because those IITians, they want to add one more smart feature into it. So it will take another 2-3 weeks to come again on the net, on the App Store. Then you can download it. This app is basically Android based, not iPhone based. For the reason, because we are also social worker, so Android based is free. And if we have to shift it to iPhone, it will cost money. So we are right now, besides, we have done the study and research and found out that majority of the people who have less access, they have Android-based phone for sure, but iPhone have few people, they are affluent people, they can have other means to get it done. So we are concerned about the masses more. From that point of view, this app is just amazing and wonderful. So although it is our app, but it is great. I would suggest everybody to download it once it comes online on the Play Store and make use of it to the maximum. Now, when we are talking of child sexual abuse,
Why child sexual abuse? What is so important about it? There are so many problems. Road accidents are there. Lots of hungry people are there. Lots of illiterate people are there. Then why child sexual abuse? So let me share some data with you, and I will try to share a little bit. In 2020, it is an international data which I'm sharing, and National Crime Record Bureau of India recognizes their data and uses their data. That agency, they disclosed that India topped the world. We did not top in the growth index, but we are topping in child sexual abuse related material on the net. It's not just the net, but physical also. Data is quite alarming, and we should know about it. Then only you will be able to connect with us that why I'm talking about it. Usually people think that strangers are danger to the child, or if somebody is coming from the jail or some criminal, we can protect our children, that we can tell them that, see, that is the criminal, stay away from them. Child will also understand it. But the data is the sexual abuse is done by the known people. 98% times, it is the known people of the child who conduct this heinous crime to our children. So it is more difficult to protect our children because it's somewhere close by who is doing it. A government survey was done in 2007, and it was found out that 53% of children are sexually abused in India. 53% means more than every other child. Not a small number. We should not think that my child is safe. Only thing is we don't know, because we did not give an avenue to our child to talk about it to us. And the child doesn't know what is happening. Just that. But other than that, it is a serious thing. And let me tell you one more thing. We think that girls are vulnerable, but let me tell you, the data is 57% of these 53% abused children were boys. In India, boys are more sexually abused than girls. We must know about it. We have all the relevant data and researches to let you know the reason for it, but that is some other time. But you should know at least this much. मोटा मोटा पता होना चाहिए हम लोगों को. अक्सर हम लोग सोचते हैं कि गरीबों के यहाँ सेक्सुअल अब्यूज ज्यादा होती होगी, पर आपको बता दें जो स्टडीज आई हैं, सेक्सुअल अब्यूज चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सब जगह एक सी है, चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो. बच्चों की सेक्सुअल अब्यूज, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज हैज नथिंग टू डू विद योर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस. इसके मतलब बच्चे सबके यहाँ वल्नरेबल हैं, कहीं पे भी हो. इम्पैक्ट क्या है सेक्सुअल अब्यूज के? हम लोग कंप्लेंट करते हैं पैट्रियार्की टॉक्सिसिटी आ रही है, पैट्रियार्कल सोसाइटी में टॉक्सिसिटी है. क्यों हो रही है? There will be always either matriarchal society or patriarchal. There will be only one way of society's structure. There is nothing wrong in it. But this toxic patriarchy is because of child sexual abuse. I have shared the data with you, you can understand. Some studies have come which has to be confirmed yet, but it is very, very much almost there to be finalized, that if this incidence happens to a child who is less than 7 years old, the chemical balance of the brain becomes so that child develops a criminal tendency. Now imagine एक छोटा सा बच्चा, 4 साल का बच्चा, जिसको अच्छे और बुरे का नहीं पता है, जिसको ये नहीं पता कि खराब क्या हो रहा है और सही क्या हो रहा है, गलत कहाँ पे है, नहीं है, उस छोटे से बच्चे के साथ किसी ने कुछ हादसा किया, और वो नन्हा सा भोला बच्चा जिसके माँ बाप बहुत संस्कारी हैं, बहुत डिसिप्लिन है, बहुत कल्चर्ड है, that develop this tendency of criminal bent. ठीक है, उसको माहौल देके हम लोग काफी कंट्रोल करेंगे, but this happened because of this sexual abuse, which is nobody's fault, especially not of that child.
और माँ बाप भी कभी कभी बड़े होकर दुखी हो रहे होते कि मेरा बच्चा ऐसे कैसे हो गया। जरा थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, बच्चे को सेक्सुअल अब्यूज से बचा दीजिए, उतने से ही सब कुछ हो जाएगा। स्टडीज आई हैं कि जो बच्चों के साथ सेक्सुअल अब्यूज होती है वो सब्सटेंस अब्यूज में बहुत जल्दी पड़ते हैं, बी ड्रग्स, बी अल्कोहल और अदर्स। हम लोगों क्या, आपको पता है ड्रग अब्यूज की कितनी कंप्लेंट्स आ रही, कितना परेशान है हम लोग। रूट को देख लेते हैं, रूट खत्म हो जाएगी, अपने आप ही खत्म होने लगे। जो मेल्स, ये स्टडीज है, मैं जो भी बोल रही हूँ वो स्टडी डेटा है। आप जब चाहेंगे मैं आपको रेफरेंसेस दे दूंगी, यहाँ पे डालने से सबका टाइम जाएगा, इसलिए नहीं डाला है। जो मेल बॉयज होते हैं, जो बॉयज होते हैं, उनके संग जब सेक्सुअल अब्यूज होती है बचपन में, अक्सर वो लोग बड़े होकर डोमेस्टिक वायलेंस में ज्यादा पड़ते हैं, वो डोमेस्टिक वायलेंस ज्यादा करते हैं। ये भी स्टडीज है। ऐसे बच्चों में अक्सर लो सेल्फ एस्टीम देखी गई है। लो सेल्फ एस्टीम होगी तो ऑब्वियसली परफॉर्मेंस तो कम होगी। आपको गैप दिख रहा है अब देश का अपने, क्योंकि देश का डेटा आपके सामने है। अक्सर ऐसे बच्चों को देखा गया है जब बड़े होते हैं वो, तो उनको रिश्ते बनाने में दिक्कत होती है, रिश्तों को संभाल के रखने में दिक्कत होती है, रिश्तों की मजबूती बनाए रखने में दिक्कत होती है, उनको किसी पे भरोसा नहीं रहता है। और ये जब वो head of the family, as we know it is patriarchal, most of the time it's patriarchal society, head of the family has this mindset, किस तरह की उसकी फैमिली होगी, किस तरह का वो सोसाइटी रिएक्ट करेगा, इन टर्न सोसाइटी कैसे रिएक्ट करेगी उसकी फैमिली से, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, एनीबडी कैन गेस इट। सिर्फ क्या है बात, सेक्सुअल अब्यूज हुई थी बच्चे के साथ। एक और जो स्टडीज आई हैं, ये सब कंफर्म नहीं हुई है, लेकिन दे आर इंडिकेटिंग a trend which we can make out to and figure out to spiritual challenges। अक्सर देखा गया, काफी स्टडीज में आया है कि ऐसे बच्चे जिनके संग ये हुआ है, उनका रेगुलर जो रूटीन रिलीजन है उससे वो डिविएट होते हैं। उसका एक एग्जांपल मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है, आई एम नॉट ऑफेंडिंग एनीबडी बट दिस इज माय पर्सनल ऑब्जर्वेशन। अपने यहाँ पे इतने सारे, मैं वर्ड यूज कर रही हूँ नकली बाबा और नकली गुरु, प्लीज पार्डन मी बट दैट इज हाउ आई एम फीलिंग, बिकॉज कई लोग जेल में पकड़े जा रहे हैं। ये जो नकली बाबा, नकली गुरु, बीट ऑफ एनी रिलीजन, जो सेकेंडरी ऑल्टरनेट जो रिलीजियस कल्ट क्रिएट हो रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं से केटरिंग भी हो रही है, क्राउड उनके पीछे जा रहा है। वो कौन सा क्राउड है? इन बच्चों का क्राउड है जो बड़े हो चुके हैं, बिकॉज देयर रेगुलर रिलीजियस बिलीफ इज शिफ्टेड, not a healthy thing. We have good standard religious patterns. Why to shift? And that shift is not useful to them. It's rather more harmful because they are making them more criminal, because उनको एक छोटा सा कल्ट में एक अलग तरीके की लाइन बना देते हैं, किसी के यहाँ थूक वाला प्रसाद होता है, मतलब just to give you an example, ये सब चीजों में बच्चों ये लोग इंडल्ज हो रहे हैं। Very unhealthy for the society, for a regular society. And this is our impacts which is bothering us, जिसकी वजह से हम लोगों को सेक्सुअल अब्यूज को रोकने के लिए जरूर सोचना चाहिए। और सेक्सुअल अब्यूज को रोकने का तरीका है उसके बारे में अवेयरनेस, उसके बारे में जानने के लिए एक बहुत जरूरी बात इस टाइम पे आप लोगों से शेयर करना चाहूंगी। सबसे ज्यादा जरूरी है सही इंफॉर्मेशन। ऐसा ना हो कि कोई छोटी मोटी गलत इंफॉर्मेशन वो और डैमेजिंग होगी, क्योंकि बहुत डेलिकेट टॉपिक है। इसको हम लोग ओवर द काउंटर तरीके से नहीं सॉल्व कर सकते। It has to be done very carefully, very responsibly, with well research, with well information, then only we can do it. Less than that, we have to be careful. Don't just take up any information from anywhere. Authenticate the information, then only please apply it. स्क्रीन पे एक छोटा सा बच्चा है, आपको सबको देख के आज भी मैं फिर इसको देखते एकदम से लगता है एकदम कोमल सा, इसको कैसे छुएंगे। मैं माँ हूं लेकिन मैं भी इस बच्चे को उठाने में डरूंगी कि कहीं इसको कुछ चोट ना लग जाए। बहुत नन्हा सा बच्चा है। Although let me tell you, this is not the real image. That's why I'm showing it clearly. Otherwise, I would not show anybody's photograph over here. ये एक स्कल्पचर है, एक फ्रेंच स्कल्पट्रिस्ट ने बनाया है। मैंने इसको यूज किया है, मैं उसको कोट कर रही हूँ। नाम मैं इस टाइम भूल गई हूँ, यहाँ पे लिखा नहीं था मैंने, अगली बार से मैं लिखूंगी जरूर। But it gives the feeling what I am going to tell you next. ये एक 28 दिन की बच्ची है।
इसकी इमेज ब्लर की गई है जानबूझ के, इसका रेप हुआ। बताइए, एक दिन का बच्चा भी सेफ नहीं है अपने आप। ये हिंदुस्तान की कहानी है। सेक्सुअल अब्यूज इतना सीरियस हो गया है। और एक बात आपको बता दें, सेक्सुअल अब्यूज क्यों सीरियस हो रहा है, क्यों रेपिस्ट बढ़ रहे हैं। 80% रेपिस्ट की जब स्टडी की गई तो पाया गया 80% of the rapists had been sexually abused in their childhood, and most of them had been abused by the women. And let me tell you one more, let me share one more thing here. Erection is not approval, it is a biological process. Or that trauma haunts these males more than anything else, and they become more heinous. We can really put a stop to it. Only thing is we have to create awareness about it. This girl is no more any, by the way. Very unfortunate, but it is there. And we have to think about it, how to stop it. And I'm glad that Bloom has taken up this objective of creating awareness about it. And all the good wishes to Bloom on it. इसमें गलती किसकी है? उस बच्चे की गलती है, एक दिन के बच्चे की, 28 दिन के बच्चे की गलती है, उसके संग सेक्सुअल अब्यूज हुई है, या उसके माँ बाप की गलती है? गलती तो किसी की नहीं हुई, अपराध हो गया, बच्चे की जिंदगी बर्बाद हो गई, तो हम लोग को किसी की गलती नहीं है। और अगर बचपन में हमारे साथ कुछ हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम बड़े होके भी वही हैं। हम लोग इसके ऊपर से ओवरकम करते हैं, हम तो इसके ऊपर से निकल के बाहर आते हैं, और हम लोग इसको खुद इससे बाहर निकलेंगे। काउंसलर्स आर देयर, वी आर हियर, लॉट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस आर वर्किंग फॉर इट। बट फिर मैं कहूंगी कि कहीं पे भी किसी को भी कांटेक्ट करने के पहले आप उसका ऑथेंटिसिटी जरूर चेक करें। एकदम से ओवर द काउंटर किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करें, बिकॉज अ वेरी डेलिकेट टॉपिक। इसको अगर गलत तरीके से बता दिया गया, इट विल कॉज मोर हार्म देन गुड। So be please very careful and be responsible for it. This is my personal suggestion and request to all of you. लेकिन इस एक बात और बता दें, अगर इतने बड़े बड़े क्राइम अपने देश में हो रहे हैं, डिप्रेसिंग जरूर है, but the law is very good here, the best in the world as of today. POCSO Act 2012, which has been framed, has been found the best act to prevent children from sexual abuse. इसलिए पॉक्सो एक्ट अगर आपको पता है तो आप अपने बच्चे को रेप से बचा लेंगे। दिस आई कैन टेल यू, प्रोवाइडेड यू नो अ लिटिल अवेयर हाउ टू टॉक टू योर चिल्ड्रन, हाउ टू फाइंड इट आउट, व्हिच ब्लूम विल टेल यू इन फ्यूचर। पॉक्सो एक्ट की फुल फॉर्म क्या है? पॉक्सो का मतलब है प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, POCSO, प्रोटेक्शन, O ऑफ C चिल्ड्रन, S सेक्सुअल, O ऑफेंसेस एक्ट 2012। इस एक्ट में 4 मेन क्राइम्स बताए गए हैं। पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हैरेसमेंट, यूज ऑफ चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पसेस। इसके बारे में मैं थोड़ी सी डेफिनेशन इसलिए बता दूं जिससे कि आप लोग को आइडिया हो जाए कि ये एक्ट किस तरह से इफेक्टिव है सबके लिए। पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, when this is considered rape. इससे ज्यादा डेफिनेशन इसलिए नहीं रहेंगे क्योंकि अभी हमें याद आया फेसबुक पे हम लोग लाइव हैं, तो डेफिनेशंस कैन बी डन इन द वर्कशॉप विल हैपन, बट लेट मी टेल यू इट इज कंसिडर्ड रेप, बट सेक्सुअल असॉल्ट इज नॉट कंसिडर्ड रेप. Sexual assault is fondling of the child, or child is made to fondle with adult. That is sexual assault. Sexual harassment में बच्चा को छुआ भी नहीं जाता तब भी ये क्राइम है, तब भी ये सेक्सुअल अब्यूज है। इसमें बच्चे को ऑब्सीन मैसेजेस भेजना, बच्चे को ऑब्सीन फोटोग्राफ्स भेजना, बच्चे को वल्गर वर्ड्स सिखाना, बच्चे के सामने वल्गर बिहेवियर करना या बच्चे से कहना वल्गर बिहेवियर करने का, ये सब सेक्सुअल हैरेसमेंट है। Sexual harassment is also a crime. Penetrative sexual assault के रेप के केस में मिनिमम 7 साल से लेकर के डेथ सेंटेंस तक की सजा बन गई है नए कानून में, और बहुत अच्छी है ये बात। सेक्सुअल असॉल्ट में मिनिमम 3 साल की सजा है, 3 साल से लेकर के 10 साल तक की, डिपेंडिंग अपॉन द ग्रेविटी। अगर आपके किसी
पर्सन ऑफ द पावर ने किया है तो इसकी 1.5 गुना सजा हो जाती है, रेप की भी और सेक्सुअल असॉल्ट की भी। सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस में भी मिनिमम 3 साल की सजा है। यूज ऑफ चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पसेस के लिए अगर बच्चे को यूज किया जा रहा है तो उसकी सजा मिनिमम 3 साल है। एक बात बता दें, आपने देखा हर क्राइम में इसमें अरेस्ट जरूरी है और सजा जरूरी है, नॉन अवेलेबल है ये क्राइम। एक बात। दूसरी एक बात हम आपसे पब्लिक के लिए शेयर करना चाहते हैं, पोर्नोग्राफिक पर्पसेस वाला जो किस्सा है, क्योंकि हमारे कई लोग जान पहचान के मुश्किल में पड़े। हुआ ये कि अगर आपके पास कोई ऐसा मटेरियल पाया गया जिसमें चाइल्ड पोर्नोग्राफी किसी फॉर्म में है, जैसे एक फ्रेंड था, वो अपने फ्रेंड क्या अपनी पेन ड्राइव वगैरह रख गया, लैपटॉप रख गया, कहीं से वो पकड़ा गया, वो जो लैपटॉप जिसके घर में पाया गया उसके दोस्त के पास था, क्योंकि वो दोस्त के पास रख के गया था, वो गांव चला गया था, रख के गया था यहाँ पे, उस दोस्त को बेचारे को भी यूज ऑफ चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पसेस में जेल हो गई। इसलिए आप लोग बहुत ध्यान रखिए, खासकर यूथ को ध्यान रखने की जरूरत है कि कोई भी किसी की चीजों को, आज के जमाने में, अभी तक तो हम लोग कहते थे जब हवाई जहाज पे जाओ, अब आप रेगुलर लाइफ में भी किसी की चीजों को रखने के पहले चेक कर लें कि उसमें कोई ऐसा कंटेंट ना हो कि आप मुश्किल में पड़ जाए। ये हम चाहते हैं कि यहाँ से इस बात का मैसेज जरूर जाए। तो ये मोटे मोटे 4 एक्ट हैं, और उसमें मीडिया के लिए भी एक्ट है कि मीडिया किसी के बच्चे का डिस्क्लोज नहीं कर सकता है। एक और बहुत जरूरी बात है कि अगर आपको पता भी चलता है कि सेक्सुअल अब्यूज हो रही है या होने वाली है वहां पे, आप प्लीज इन्फॉर्म कर सकते हैं पुलिस को, एनोनिमस करिए इन्फॉर्म। आप ऐप यूज कर सकते हैं। ऐप से ये है कि उसकी जो डिपार्टमेंट से ज्यादा डिपार्टमेंट्स को पता चल जाएगा तो ज्यादा मदद जल्दी पहुंच जाएगी। बट वैसे भी आप एनोनिमस कॉल कर सकते हैं, 1098 को कॉल कर सकते हैं, और रिपोर्ट जरूर करें, क्योंकि आप अगर रिपोर्ट नहीं की और बाय द वे वो केस कहीं पे कभी जो केस बना और इन्वेस्टिगेशन में आया कि आपने रिपोर्ट नहीं किया जबकि आपको पता चल चुका था, तो आपको भी जेल होगी। इसलिए सेक्शन 19 है, उसमें रिपोर्टिंग जरूरी है। सेक्शन 21 है, उसमें आपको जेल हो जाएगी। इसलिए प्लीज इस बात का ध्यान रखें। पुलिस वाला भी अगर रिपोर्ट नहीं करेगा उसको भी जेल होती है। आपको बस इन्फॉर्म करना होता है एनसीपीसीआर को। एनसीपीसीआर कॉग्निजेंस लेती है। हमने पॉक्सो आपको बता दिया, लेकिन हम आपको बता दें, हमने ये जो पाई चार्ट दिखाने जा रहे हैं, ये आप लोग को ध्यान से देखने की जरूरत है। क्यों? एक्ट हमारे पास है, लेकिन एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पे लैग कर रहा है वो जानना है, और वहीं पे हम लोग काम करेंगे तो शायद जल्दी हम लोग सोल्यूशन को पा जाएं। 2016 और 18 का डेटा है हमारे पास। ब्लू कलर रेप है, रेड कलर सेक्सुअल हैरेसमेंट है, ग्रीन कलर सेक्सुअल असॉल्ट है, रेड कलर, और ग्रीन कलर हैरेसमेंट है। आप देख रहे हैं 62% 18 में रिपोर्टिंग हुई है, 55% 16 में रिपोर्टिंग हुई है रेप की। कुछ एजेंसीज काफी खुश हो गई कि रेप की रिपोर्टिंग बढ़ गई, इसका मतलब कि लोग खुल के सामने आने लगे, क्योंकि पॉक्सो की एक और प्रॉब्लम है, लोग रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अक्सर क्या होता है, हमने आपको बताया ना, 98% टाइम तो नोन होता है जो आप बच्चे का करता है। हो सकता है माँ बाप ही उसे ऑब्लाइज हो किसी वजह से, जो शर्म के मारे ना बताएं पुलिस को, जिससे रिपोर्टिंग नहीं हो रही है ज्यादा। उस रिपोर्टिंग के लिए जब 62% डेटा आया शुरू में तो काफी लोग खुश हुए, लेकिन जब हमने पाई चार्ट बना के देखा तो पाया कि रेप ही बढ़ रहा है, रिपोर्टिंग नहीं बढ़ी है। आप इस तरह से देख लीजिए ना, 34% सेक्सुअल असॉल्ट की रिपोर्टिंग हुई है, 32% सेक्सुअल असॉल्ट की रिपोर्टिंग हुई है 18 में। हैरेसमेंट की 8 से 5% डाउन आ गई है, 3% उसमें भी डाउन हुआ है रिपोर्टिंग में। पोर्नोग्राफी में भी डाउन हुआ है रिपोर्टिंग का। इसका मतलब क्या है कि एक्ट को ट्वीक करना लोगों ने सीख लिया है। ट्वीक करने की वजह से, क्योंकि रेप हो गया तब तो मजबूर हो गया, क्योंकि एविडेंस आ गया तो रिपोर्टिंग रिकॉर्ड होनी पड़ी, लेकिन ये वाली रिपोर्टिंग कम हो गई। अगर हम लोग इस स्टेज पे रिपोर्टिंग बढ़ा दें, जब पोर्नोग्राफी हो रही है, असॉल्ट हो रहा है, हैरेसमेंट हो रहा है चाइल्ड सेक्सुअल बच्चे का, तो हमारे बच्चे का रेप रोका जा सकता है, रेप का परसेंटेज कम हो जाएगा। और ये हम क्यों कह रहे हैं? जो अब्यूजर होता है वो बच्चे को एकदम से रेप नहीं करता है, पहले ग्रूम करता है बच्चे को। ग्रूम करने के लिए वो यही टेक्निक यूज करता है, बच्चे को वल्गर चीजें दिखाना, वल्गर कंटेंट दिखाना बच्चे के सामने, टेस्ट करने के लिए बच्चे को धोखे से कभी एकदम से उसके प्राइवेट पार्ट्स छू लेना, टेस्ट करना कि बच्चा समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा है। इस तरह के छोटे छोटे कामों से वो आगे बढ़ता है, और वो हम लोग रोक सकते हैं अगर हम लोग इसी पॉइंट पे चेक कर दें, पुलिस में रिपोर्ट कर दें, तो ये चीज रोकी जा सकती है। इसके लिए क्या करना चाहिए? सबको पॉक्सो एक्ट जरूर पता होना चाहिए, और पॉक्सो एक्ट पता होने के बाद रिपोर्ट करने की हिम्मत करनी पड़ेगी। एक बात आपको अपना एक्सपीरियंस बता दूं मैं, एक
किस्सा है कि एक किस्सा नहीं मतलब सच्चाई है। मुझे एक कंप्लेंट आई और वहां के एमएलए ने, क्योंकि एमएलए की भी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कंप्लेंट करने की, उसने मुझसे कहा कि इस जगह पे इस लड़के का रेप एक आदमी कर रहा है और उसकी वजह से ये बच्चा आज हॉस्पिटल में है, आप उसको प्लीज बचा लीजिए। मैंने कंप्लेंट की, अपने ऐप से एनोनिमस कंप्लेंट की, क्योंकि मैं भी आई एम ए सिंगल वुमन, आई लॉस्ट माय हस्बैंड इन 2011, मेरे भी बच्चे हैं, मुझे भी जिम्मेदारी है अपने घर की। मैंने एनोनिमस कंप्लेंट की, तुरंत पुलिस और चाइल्ड लाइन तुरंत एक्शन में आए, काउंसलर वगैरह लेके गए वो लोग बच्चे के पास। लेकिन पुलिस उस गुंडे से क्योंकि मिली थी, गुंडा बहुत पावरफुल था उस एरिया का, गुंडे को पता चल गया पुलिस आ रही है, उसने जल्दी से, क्योंकि वो बच्चा बगैर बाप का बच्चा था, उसकी माँ को फुसला लिया, माँ गरीब थी, किसी तरीके से उसने कंप्लेंट करने से रोक दिया उसको। हमारा फेलियर हम मानते हैं, लेकिन एक सक्सेस इसमें है, वो सिल्वर लाइनिंग ये थी, कंप्लेंट तो नहीं हो पाई, मुझे भी पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, जबकि मैंने एनोनिमस की थी, पर मैंने पुलिस को बता दिया था अपना नाम और मैंने कहा था मुझे एनोनिमस रखा जाए। कंप्लेंट मुझे एक्शन इसलिए नहीं हो क्योंकि पॉक्सो एक्ट में है ये कवर्ड कि अगर आप इन्फॉर्म कर देंगे और कंप्लेंट अगर नहीं भी होती तब भी आप नहीं पकड़े जाएंगे। ये मैं आप सबको बताने की प्लीज यूज करिए इस पॉक्सो एक्ट को। लेकिन उसकी वजह से फायदा क्या हुआ, उस लड़के को आज अब 2 साल हो चुके हैं, कभी कोई छूता नहीं है, क्योंकि सबको डर ये है कि इस लड़के के पास कोई पावर है कि पुलिस आ जाती है। एंड दैट इज माई विक्ट्री। एटलीस्ट उस बच्चे को इतना बचा लिया मैंने, उसकी काउंसलिंग फिर करवाई हम लोगों ने, वो सब किया, वो तो दूसरी बात है। लेकिन हम लोग, अगर सिस्टम कमजोर है तब भी हम लोग मदद कर सकते हैं अगर हमने रिपोर्ट कर दिया है। रिपोर्ट करने का तरीका बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा, बस उतना आपको ध्यान रखने की जरूरत है। मैं आपको जो बताने जा रही हूँ, पॉक्सो एक्ट होने के बावजूद सिस्टम प्लेस में है। अभी हम लोगों ने 2018 में एक बेसलाइन स्टडी की थी। इस बेसलाइन स्टडी में आईआईटीएंस के साथ की थी 2018 में, जब ये डेटा हम लोग को पता चला था। और आपको जब बताएंगे इसका डेटा तो आप लोग को पता चलेगा कि कितनी चिंता की बात है। इन आईआईटीएंस ने 4000 लोगों को डोर टू डोर कॉन्टैक्ट किया था। इसमें से 80% दिल्ली के थे, दिल्ली की डिफरेंट कम्युनिटी हम लोगों ने की थी। 20% आउट ऑफ दिल्ली 5-6 मेजर सिटीज को लिया था हम लोगों ने, और वहां पे जाके डोर टू डोर कॉन्टैक्ट किया था। आपको विश्वास नहीं होगा, 4000 में से सिर्फ 1900 लोगों ने सर्वे में पार्टिसिपेट करने को राजी हुए थे। इसके अलावा जो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि जो 2100 लोग राजी नहीं हुए थे, उसमें से 60% लोग एजुकेटेड अफ्लुएंट क्लास से थे। इट्स नॉट ए स्मॉल थिंग। एजुकेटेड है, अफ्लुएंट है, बट दे डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट। इफ दे डोंट वांट टू टॉक, दे आर हेडिंग सम इंस्टीट्यूशंस, सम फैक्ट्रीज, इफ दे आर नॉट टॉकिंग, आगे बात कैसे बढ़ेगी? ये हम लोगों का पॉक्सो एक्ट की अवेयरनेस का लेवल है लोगों का। इसके अलावा जिन्होंने 1900 लोगों ने पार्टिसिपेट भी किया था, उसमें से 30% लोगों ने कहा कि दे विल नॉट इन्फॉर्म द पुलिस इफ दे फाइंड आउट अबाउट द इंसिडेंट। ये हम लोगों का अवेयरनेस लेवल है। इस लेवल पे पॉक्सो एक्ट की इंफॉर्मेशन है लोगों के पास। इसको हम लोगों को जरूरी है कि लोग जाने कि पावर्स हैं, सिस्टम है, आपको इस्तेमाल करने की जरूरत है। यहाँ पे मैं आपके साथ एक इंसिडेंट शेयर करना चाहती हूँ। अभी रिसेंटली हुआ है, 3 महीने पहले मार्च में हुआ है। एक मेरे पास केस आया छत्तीसगढ़ का, एक लड़के ने सुसाइड किया था, टीनेजर ने, और उसने अपने खून से सुसाइड नोट लिखा था। उस सुसाइड नोट में उसने लिखा था कि आई विश, उसको एक फीमेल सेक्सुअली अब्यूज कर रही थी, आई विश कि लड़कों के लिए भी कोई कानून हो। उस बेचारे को पॉक्सो एक्ट नहीं पता था शायद। और ये बता दें आपको, फाइनली हम लोग बहुत मुश्किल से उसकी जेल करवा पाए उस टीचर को। और सबसे ज्यादा जो जरूरी बात है इसमें वो ये है कि इसको जेल करवाने के लिए जब हमने पुलिस से कहा कि इसको जेल करो, तो उन्होंने कहा कि मैडम महिला है वो, इवन दे डिड नॉट नो पॉक्सो इज जेंडर न्यूट्रल। यहाँ पे हम लोगों को जरूरत है काम करने की। इस लड़के को जो एफआईआर करवा पाए वो इस लड़के की वजह से। आपको बताना चाहेंगे वो किस्सा, क्योंकि ये सबको मदद करेगा। वो लड़का बहुत इंटेलिजेंट जीनियस था, मतलब उसके बाद में हम लोगों को पता चला उस लड़के ने क्या किया था, टीचर का मोबाइल हैक कर लिया था। हैक करके उसको 1 हफ्ते के लिए पासवर्ड प्रोटेक्ट कर दिया था। पासवर्ड इसने खुद क्रिएट कर दिया था और सुसाइड नोट में लिख के गया था कि अगर ये आपको मिल रहा है नोट, इसका मतलब मैं मर चुका हूँ,
आप प्लीज ये पासवर्ड पुलिस के पास ले जाइए, पुलिस से कहिए ये पासवर्ड डाल के, और बाय द वे पता लगा टीचर ने कंप्लेंट की थी कि उसका मोबाइल हैक हुआ है, इसके मतलब इट इज ऑल द थिंग्स वर फॉलिंग इन प्लेस। उस लड़के ने कहा कि आप ये मोबाइल को ले जाएंगे, आप ये ले जाइए, उस टीचर का मोबाइल को खुलवाइए, उसमें सारा आपको प्रूफ मिल जाएगा, क्योंकि इनकी जो चैटिंग थी, इनके जो वीडियोस थे, जो इनकी वीडियो कॉल्स थी, ऑल वर देयर। और पुलिस, क्योंकि वो औरत है और उससे तरस आ रहा था, क्योंकि मैं फोन करूं तो इवन कहना नहीं चाहिए, बहुत बड़ा अधिकारी वहां का, उसने कहा कि अरे मैडम क्यों इस औरत के पीछे आप पड़ी हुई हैं, आप भी तो औरत हैं, हम औरत हैं तभी हम पीछे पड़े हैं, एक औरत का नाम बदनाम हो रहा है, एक महिला, पूरी महिलाओं को बदनाम कर रही है ये औरत। इसलिए इसको जरूरी है कि पता चले कि औरतें भी गलत हो सकती हैं, औरतें ठीक है दिल की अच्छी होती हैं, कोमल होती हैं, नाजुक होती हैं, केयरिंग होती है, लेकिन कभी कभी वो भी गलत होती है, और ये नॉर्म सोसाइटी में अब सबको पता चलने की जरूरत है। जब हम लोगों ने पीछे पड़े, पुलिस को नहीं पता था, फिर पुलिस को पॉक्सो एक्ट कॉपी भेजी कि अरेस्ट अंडर दिस एक्ट, तब उन्होंने अरेस्ट किया है। पॉक्सो एक्ट की अवेयरनेस की बहुत ज्यादा जरूरत है, और कैलाश सत्यार्थी जी हम लोगों का साथ दे रहे हैं इसमें। अब उन्होंने एक, क्योंकि वो परिवार भी सिंगल मदर है, अक्सर हमने देखा सिंगल मदर के बच्चों के संग ज्यादा ही हो रहा है, हालांकि आई विल नॉट पुट इट एज अ नॉर्मल ब्लैंकेट, बट जस्ट इन माय केस माय स्टडीज आर कमिंग लाइक दिस। तो जो पुलिस है उसने अरेस्ट भी किया है, और कैलाश सत्यार्थी जी ने एक वकील हम लोगों के लिए अरेंज किया छत्तीसगढ़ में, वो कैलाश जी यहाँ से फीस पे कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं उसको, उनकी टीम। So I want to acknowledge Satyarthi Foundation also for helping us, because we could not do everything in our reach. पर जरूरत कहाँ पे है? जरूरत है हम लोग को सिर्फ पॉक्सो एक्ट की अवेयरनेस से ही बहुत काम हो जाएगा, लेकिन हाँ पॉक्सो एक्ट कहाँ पे इम्प्लीमेंट होता है उसके लिए चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज जानना बहुत जरूरी है, और चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज क्यों रोकना जरूरी है, थोड़ा सा उसका डिटेल बहुत जरूरी, नहीं तो लोग समझ ही नहीं पाएंगे कि इसकी वजह क्या है। और इसी के साथ बस मैं यही कह के अपनी बात खत्म करूंगी। We wish there will be no more Me Too stories to hear in the future, not because victims will fear to report, but because there will be no more victims. Thank you. आप लोगों को किसी को भी कुछ भी सवाल हो आप लोग कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगी आपका जवाब देने की। Thank you, Archana. That was very, very inspiring and eye-opening. Some of the statistics that you threw up were really, really shocking and an eye-opener to us. There are things that you said that we need to take forward. There will be some questions. Let me ask a couple of questions. Sure. When we talk about such tiny children, people who are not mentally attuned to this, what happens when a complaint is made, and how is the questioning done? Will the questioning create more trauma for the children, or are our police or authorities really good enough to ensure that they are not mentally traumatized again? Well, according to law, when this complaint occurs of POCSO, police is supposed to go with child welfare committee's counselor to the child. Right away, counseling starts, and the questioning is done in a simple manner. There is law in POCSO Act. The child cannot be interrogated strongly or obviously. It has to be simple language, one thing. Second thing is, police cannot go in the uniform to the child's place or to the neighborhood of the child. Police cannot talk about the name of the child so that the identity of child is disclosed 100%. Under the act, you cannot disclose the identity. You cannot disrespect the child. You cannot keep the child in police station. You will have to go to the place where child is comfortable. That's where you have to get the reporting or complaint registered. One thing. Second thing is, even if the child goes to the court, the law says that the court will be there where the child wants, where the child is comfortable. So 100% focus is on the psychology and comfort and mental status of the child to be kept safe and intact. So yes, your question is very genuine and very important for the reason, as I told you, sometimes even police doesn't know. They can mishandle, but if you are there, you can tell them the law is this. So please be careful. So yeah, it is there.
it is Yeah. very well has been considered into the app. Thank you. Thank you for the clarification. So we can conclude that there is a structured way of questioning a child so that the child doesn't get traumatized again. Because Yes. our law enforcement authorities, sometimes we keep hearing of shocking stories in the newspapers wherein our law enforcing authorities or people in power don't have the wherewithal to really take this forward, and there is more trauma to the victim. Absolutely. So it's nice to know this. Agree. Yeah. Yes. Now I hand it over to Deepak for any questions before we throw it open to the general public for any questions that they have. So I will just ask Archana ji 2 or 3 questions. I'm sure these questions are there in the minds of many people before we open it up to the people in the house to ask questions. Archana ji, जब भी ऐसे कानून बनते हैं, whenever laws like this, really strict laws, जब ये बनते हैं तो उसका misuse होता ही है. Have you ever come across misuse of these cases? And in that case, since this law is so tough, it is so rigid, you will be put in jail. अगर किसी ने कंप्लेन कर दी, आपने किया होगा या नहीं किया होगा, पहले तो आपको ये लोग अंदर डालेंगे. What are the safeguards that can or should be built before making laws like this so that the real genuine people are not harassed? Very good question, Deepak ji. Actually, you touched my that nerve which I have for this law. Yes, I am really concerned, and this is what I am talking to each and everyone. Don't misuse this act because it will get diluted. This is happening. Actually, our future plan is that we are going to set up a committee, legal and investigative committee, to protect innocent people. It is happening. In this case, 3 things can happen. One thing is, act should be known to more people. Second thing, and in the act, it is mentioned that sometimes people try to get even because everybody, even the act maker, knew that it can be misused. That if it is used with that intention, like in the case of fights or neighborhood fights or family fights, family disputes, this case will be taken with consideration of that issue first. So arrest will be done after investigation, not just like that, as it is supposed to be in POCSO Act. It is there. Yes. Third thing is, I mean, here all the victim is the child usually, but sometimes this innocent person is also a victim. They should be more alert and aware about the act. If they know the act, they can safeguard them because they know that how to approach their issue. There are so many ways to protect, but yes, sometimes it has to be really considered, and yes, some innocent victims get caught. And let me tell you, this data, I think I should share. I was hesitating to share. I got 15 children. Out of this, only 6 were genuine, 9 were false. And I refused to work on those cases. And I submitted my report that these are fake cases. Few we could close ourselves, but few are still in process. But at least I gave my report that this is fake case. So yes, it is there. It is serious. It has to be addressed. But more people know the act, I think, and they will have to act responsibly also. Because more people knowing act, they are those people who are knowing act who are misusing it. Right now, this is the situation. So we should let more regular people know it so that it can be taken into right place. And yes, for wrong way of complaining and putting a person in trouble, there is a law in POCSO Act. That person will be arrested, put behind bars also. So it is there also. So, but Wonderful. Good to know. Situation, yes. Good to know. See, previously, whenever these laws used to be there, really strict laws, it started with 498A. There was TADA, and anybody could be just grabbed on the basis of a complaint and put inside, और सुनवाई भी नहीं होती थी. Good to know कि at least safeguards built in हो रहे हैं, so that कोई अगर misuse करे तो उसको भी उसका भुगतना पड़ेगा. ठीक है. Good to know this. One thing is, you said that you were in the US for many years and after that you moved into India. Yes. What is the difference? And I'm not saying that there is a difference between sexual harassment over there or it is over here, but somehow the family structure in India is still intact compared more to what is happening in the West. So, can you say that वहां पर ऐसा होता है और यहाँ पर ऐसा होता है कि नहीं, दोनों जगह सेम ही है?
बिल्कुल बिल्कुल सेम है। थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा सा फर्क ऐसे, वहां पे लोग अवेयर ज्यादा है, कानून इम्प्लीमेंट ज्यादा होता है वहां पे, और कानून अक्सर ईमानदारी से इम्प्लीमेंट होता है। कहने में बुरा लग रहा है मुझे, लेकिन हम लोग जब तक कमी को जानेंगे नहीं तब तक उसको ठीक नहीं कर पाएंगे। तो हमारे पास सब समय है कि हम लोग साफ बोलें और आगे बढ़े। देश हमारा ही अच्छा है, अभी भी मैं कहूंगी। अपने यहाँ का कल्चर, स्ट्रक्चर, सब कुछ अच्छा है। अगर आप लोग को शायद नहीं पता है, हम यूपी से बिलोंग करते हैं। यूपी थोड़ा सा, और मैं हिंदू हूँ। हम लोगों क्या एक कल्चर है या एक ट्रेडिशन है कि जब आपका बच्चा पैदा होता है उससे 5 साल तक आप बच्चे की तरफ मुंह करके सोते हैं। बच्चे को अपनी आंखों के सामने से हटने नहीं देना है। ये एक चीज हम लोगों को, क्या हमारी सास ने हमको सिखाई, सास को उनकी सास ने सिखाई थी। ये एक कल्चर आ रहा है। तो वो इसी वजह से कि 5 साल तक आपने अगर बच्चे को प्रोटेक्ट कर लिया, तब तक आपने बच्चे को तैयार भी कर दिया कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आएगी तो उसको जो है कैसे उससे बचना है, क्योंकि 5 साल तक के बच्चे को आप सिखा लेते हैं ये सब बातें। और हमारा जो स्कूल करिकुलम है, ये टीचिंग्स, ये लर्निंग्स, आपको नहीं लगता कि हम लोगों को बचपन से ही स्कूल में ले लानी चाहिए? पेरेंट्स को ज्यादा अवेयर करना चाहिए कि अपने बच्चों को कैसे समझावें, गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है, और कल को कभी भी कोई ये करे तो वो उस लेवल तक बात जाए नहीं कि कहीं पर हैरेसमेंट हुई या इम्प्रॉपर टच हुआ, जैसे भी हुआ पता चल गया और उसको वहीं पर रोक दिया। बहुत अच्छा दीपक जी, आपने बिल्कुल बिल्कुल सही चीज करी। जो सेक्स एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट था, उसका रीजन यही था कि बच्चों को प्रोटेक्शन के और हाइजीन के पॉइंट ऑफ व्यू से एजुकेट किया जाए, जिसको कि लोगों ने कुछ उसका अपभ्रंश कर दिया, उसको वल्गैरिटी के कॉन्सेप्ट पे ले गए। अभी भी हम लोग अपने बच्चों से ये नहीं कहते कि ये तुम्हारा वजाइना है, ये तुम्हारा पेनिस है, ये तुम्हारा एनस है, ये तुम्हारा ब्रेस्ट है। हम लोग के चेहरे पे लाली आ जाती है, हाँ हाँ करके एकदम से फीलिंग आती है अंदर से। हम लोग इसको अभी भी नॉर्मलाइज नहीं कर पा रहे हैं। ये भी तो शरीर का हिस्सा है, बल्कि ज्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इनको क्यों नहीं हम लोग ध्यान देते हैं कि हम लोग अपने बच्चों से, अभी भी आप, हम कहीं भी वर्कशॉप के लिए जाते हैं, बच्चों से जब पूछे तुम्हारे बॉडी पार्ट्स क्या, वो सारे ऊपर से नीचे तक बताते हैं। हम कहते हैं सर से पैर तक बताओ, बट दे विल नॉट टेल यू दैट दे हैव पेनिस और वजाइना, दे विल नॉट टेल यू दैट दे हैव एनस, दे विल नॉट टेल यू दे हैव ब्रेस्ट। ये बात वो नहीं बता पाते हैं। और अगर उनसे कहो तो यू करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग बच्चों से उस लेवल पे कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं। उस बच्चे के संग जब कुछ होता है वहां पे, तो उसको पता ही नहीं होता क्या हो रहा है। उसको ऑकवर्ड लगता है, अनईजी लगता है, लेकिन उस बेचारे को पता नहीं है। हम लोग को इस लेवल पे कम्युनिकेशन लाना है, लेकिन कम्युनिकेशन में वल्गैरिटी नहीं आने देनी है। कम्युनिकेशन इज फॉर द बेनिफिट ऑफ द चाइल्ड एंड फॉर द सोसाइटी। उस लेवल पे अब इसका एक एग्जाम्पल देना चाहते हैं आपको। हम लोग स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग वर्ड बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। जब मास्टर जी बचपन में पूछा था स्त्रीलिंग शब्द कौन सा, तो हम लोग इतना लंबा हाथ उठाते थे, हम बताएंगे। अभी भी हम लोगों को ये नहीं लगा कि हम लोग क्या बोल रहे हैं। सर जी ये स्त्रीलिंग है, ये पुल्लिंग है। अगर उसको संधि विच्छेद करें, स्त्रीलिंग को, स्त्री और लिंग, फीमेल जेनाइटल, इसको अगर आप बोले कितना वल्गर लग रहा है, हाँ ये क्यों बोल दिया, एकदम से आएगा। लेकिन उसको इतना हम लोगों ने जनरलाइज कर दिया, इतना सिंपल लैंग्वेज में ले आए कि वी नेवर इवन थॉट दैट इट इज हाँ। वही एक हम लोगों को थीम पे आना पड़ेगा। और ऐसी बात नहीं है, अपने कल्चर में एंशिएंट टाइम पे, मैंने वैदिक स्टडीज थोड़ी सी, अपने कल्चर में काफी ओपन लिबरल माहौल था। इन्वेजन के बाद थोड़ा सा जो है, जो चेंजेस आए हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा ये हो रहा है, जिसकी वजह से बढ़ रही है। लेकिन इसको रोक भी हम ही लोग देंगे। हम लोग एक नॉलेज इस लेवल पे फिर से पहुंच सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये सब हो सकता है। और आपने जो कहा एजुकेशन में होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। एजुकेशन में सेफ और अनसेफ टचेस के बारे में जरूर बताना है। एक बात हम ऑडियंस को बताना चाहेंगे, पहले गुड टच बैड टच यूज किया जाता था, लेकिन साइकोलॉजिस्ट ने की एक सेमिनार हुई थी शेषाद्री जी के अंडर में, निमहांस में, बैंगलोर में, एंड दे केम टू द कंक्लूजन कि गुड एंड बैड होने से क्या होता है, जब बच्चे के संग अगर कुछ हो गया तो लगता है कि वो बैड हो गया, बच्चा ही बैड हो गया, उसको ये फीलिंग आती है। तो वहां से नए टर्म कॉइन किए गए, सेफ टच और अनसेफ टच। सेफ टच, एंड दैट मेक्स मोर रेलिवेंस ऑल्सो, क्योंकि बच्चे के लिए क्या सेफ है क्या अनसेफ है, दैट इज क्वाइट रेलिवेंट एंड ओके। तो इसलिए अब हम लोग सेफ टच और अनसेफ टच वर्ड्स यूज करते हैं। एंड यस, इट मस्ट बी एजुकेटेड। लेकिन हो क्या रहा है, स्कूल्स में जो टीचर्स बताती हैं उनको भी बताना नहीं आ रहा है, और उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या हो रही है, जो मिसकम्युनिकेशन हो रहा है बच्चे के संग, वो और डेंजरस हो रहा है। इसमें अभी जैसे हमारे फ्रेंड ने बताया कि वो, हमारा फ्रेंड अपने बेटे के साथ नहा रहा था, तो बेटे ने मना किया कि नहीं नहीं, मुझे प्राइवेट पार्ट को मत छुओ। ये गलत है। बच्चे को नहलाते समय अगर माँ बाप नहीं सिखाएंगे तो कौन सिखाएगा हाइजीन कैसे होगा।
और ये एक बहुत, और वो दे सेड कि ओके आई एम रिस्पेक्टिंग, हमने कहा नो यू आर डूइंग द रॉन्ग थिंग, यू हैव टू एजुकेट योर चाइल्ड that this is the part of the body, how to clean it, how to save, keep it healthy. Only you can teach, nobody else can. But tell them the difference between the unsafe touch, when the person is doing it in privacy or secrecy and the person is not that known close to you, और वो person उसके बाद तुमको छुप करने के लिए कहे, छुपाने के लिए कहे, secret करने के लिए कहे, then it is alarm. तो ये बातें यहाँ पे मिसकम्युनिकेशन हो रहा है, इसकी बहुत जरूरत है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि सही चीज बताने की जरूरत है, गलत चीज से नुकसान ज्यादा हो रहा है। सही, अच्छा हुआ आपने ये बता दिया और क्लैरिफाई कर दिया। Premraj, Premraj, can you introduce Jyoti ji? We can just have a speak on a platform for few minutes. Yeah, we have on the show Jyoti Tiwari, who will be conducting a session on POSCO, and that will be a detailed session on POSCO. So Jyoti, if you want to just brief the people on this call about it, the floor is yours. 1 minute, I would like to really praise Jyoti ji, because I read about her and I was so impressed. I mean, I would really congratulate Bloom Group to have Jyoti ji on board. A person like her will really bring big change in the society. And good luck, Jyoti ji. I'm so happy to know that you are there for them. Thank you, Archana ji. Thank you so much. Thank you, Premraj ji. Thank you, Deepak ji. I'm so obliged and so happy to be here. And it was such a pleasure to hear Archana ji. We have talked earlier also, and I was like, I really want to attend because the way she presents things is amazing. जो भी मैम ने बात कही वही आगे फॉरवर्ड ले जाऊंगी, एंड फर्स्ट आई विल टेल यू वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम एंड व्हाई आई एम डूइंग दिस. सो आई एम विद यू ऑल. मैं आपने मिसयूज की बात कही थी, उस पर बहुत काम होना है अभी. मैं एक्चुअली उसी क्षेत्र से इधर पे आई हूँ. सो आई हैव वर्कड विद द मेंस वेलबींग मूवमेंट फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम. बहुत दिन तक मैंने उन लोगों के साथ काम किया है. आई हैव रन अ कम्युनिटी सेंटर फॉर मेन, जहां पर ये 498 और डीवी से प्रताड़ित लोग आते थे, और पॉक्सो तो ऐसे हथियार की तरह यूज होता है वहां पर. एंड इट्स वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट कि इस एरिया को बिल्कुल ऐसे बोल दिया गया कि अरे सारे ही लॉज मिसयूज होते हैं, बट ये बहुत सीरियस है. सो दिस हैपेंड बिकॉज वन ट्रेजेडी एट माय प्लेस. आई वाज accused in 498 by my brother's wife. So I have seen that all. I have first-hand experience that. I lost my brother, and that is how I came in this arena. I was a trained journalist. I have worked with All India Radio. समाचार पढ़ती थी मैं आकाशवाणी लखनऊ में. मैम प्रयागराज से हैं, मैं लखनऊ से हूँ, हम दोनों यूपीआई से हैं. तो बहुत हिंदी में बहुत काम किया है मैंने. तो वहां से मैं आई, पर मैंने अपना क्षेत्र बदला. इसलिए बदला क्योंकि मैंने देखा कि मैं बहुत बड़ी फेमिनिस्ट थी, और अब मैं अपने आप को फेमिनिस्ट नहीं बोलती हूँ इस वजह से, क्योंकि दैट थर्ड वेव एंड फोर्थ वेव ने सारा कुछ डिसबैलेंस कर दिया. इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग ईच अदर, कि मैं आपको ब्लेम करूं, पेट्रियार्की को ब्लेम करूं, मैस्कुलिनिटी को ब्लेम करूं, वी शुड वर्क अपॉन द कॉज कि ये आ कहां से रहा है. ये कैसे हो जाता है कि एक छोटा सा बच्चा वायलेंट हो जाता है, बच्ची इस तरह से बिहेव करने लगती है कि उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि मैं ब्लेम कर रही हूँ पूरे खानदान को, जबकि दहेज की कहीं बात नहीं हुई थी. तो वेयर इज इट कमिंग फ्रॉम? इट इज कमिंग फ्रॉम, एज मैम सेड, बचपन में जो अब्यूज होते हैं हमारे साथ, जो हमारे साथ, अगर हम आज ये बात बोल रहे हैं, ये इसलिए है क्योंकि हमारी अपब्रिंगिंग वैसे है, हमें वैसे प्रोटेक्ट करके रखा गया, और हमको सब कुछ साफ साफ सही और गलत नजर आ रहा है. उनको इसलिए नजर नहीं आ रहा है, दे हैव बीन ब्रॉट अप लाइक दैट. देयर इज सम अब्यूज बिहाइंड एनी. आप रेपिस्ट को आप पकड़ करके अगर आप पूछेंगे, और उसका अगर आप साइकोलॉजिकल एनालिसिस करेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कहाँ से आया. इसलिए मैं हैंग द रेपिस्ट वाले कैंपेन में भी कभी नहीं पढ़ती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ब्लेम करने से, हैंग करने से, लिंचिंग करने से ये प्रॉब्लम जाएगी नहीं. डर लोगों में खत्म हो चुका है बेसिकली. दिस इज व्हाट आई हैव सीन. और अगर कानून इतना ही कारगर होगा तो मर्डर जैसे क्राइम हो रहे हैं, और 302 है हमारे पास, फिर भी हो रहे हैं. तो इट शुड बी वर्कड फ्रॉम द ग्रास रूट, दैट इज ट्रेनिंग चिल्ड्रन. बच्चा क्या है, पहली बात तो यही मैम अभी बोल रही थी ना, टीचर्स को भी नहीं पता है. वी हैव टू ट्रेन द टीचर्स. बच्चों की कैटेगरी में कौन लोग आते हैं, उनको कैसे हैंडल करना है. हाँ, मैंने जब गुड टच एंड बैड टच, मैम अभी जो नहाने वाला बता रही थी, वो मेरे बेटे ने भी स्कूल से सीख के आया था, और मुझे बोला नहीं आप मुझे नहलाओगी नहीं, हाँ दिस इज बैड टच. तो आई हैव टू क्लैरिफाई दैट कि आई हैव टू टेल यू कि आपके प्राइवेट पार्ट्स को आपको कैसे साफ करना है, आपको कहते क्या है. यू हैव टू यूज द वर्ड पीनिस एंड वेजाइना, और उसको नॉर्मल करना बहुत इंपॉर्टेंट है. पीरियड टॉक नॉर्मल करना बहुत इंपॉर्टेंट है,
क्योंकि हम लोग ये सारी बात कर नहीं रहे हैं। और हमारे यहाँ अगर मैं पीरियड की बात करूँ तो बहुत ही बड़ा हो जाएगा कि हमारे यहाँ तो प्यूबरिटी के फंक्शंस होते हैं। सदर्न इंडिया, ओडिशा में भी रजो फेस्टिवल होता है। तो हम पता नहीं ये टैबू कब बना और कैसे बन गया कि हमने बात करना छोड़ दिया। जब हमने बात करना छोड़ दिया तो लोगों को समझ में नहीं आता है कि उसके बारे में बात कैसे करनी है, और बच्चे को कैसे समझ में आएगा। सो देयर इज अ डिसबैलेंस, मगर उसको बैलेंस करने के लिए आई एम वेरी हैप्पी दैट ब्लूम हैज टेकन दिस स्टेप एंड आई एम हियर। आई कैन नॉट tell you how happy I am to be part of it. Let's educate the world. Let's educate each and every person of this country what exactly is child, उसको कैसे हैंडल करना है, और अगर ऐसा कुछ अनफॉर्चुनेट हो जाता है तो कैसे हैंडल करना है। मैम ने जो हैरेसमेंट्स बताए थे वो सब कुछ हम डिटेल में इस प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग पेशेंट विद मी। थैंक यू। थैंक यू ज्योति जी, आपने 3 या 4 मिनट में पूरा संक्षिप्त में जो है पूरा सब कुछ बता दिया है। एंड पायल हैज ए वेरी स्पेशल ऑफर फॉर पीपल हु विल बी जॉइनिंग इन। पायल, व्हाई डोंट यू गो अहेड? Namaste everyone. So on this noble day, Bloom is coming up with a POXO program. It is a 5 days TTT certification program. Anybody who is interested today, whether it's your family, your friends, please pass on this offer. We are coming up with flat 60% only for people who have attended the show today. So this offer will be valid only for till 12 p.m. tonight. Husaina from our team will be posting the link. Kindly fill up the form and we will get back to you. This offer is 60% discount and we are offering only for our audiences today. So what is the actual price and what price are we offering it at, Payal? Actual price is 5,000 and we are offering for 199. 1,999. Okay, thank you, Payal. So anybody who knows somebody who would gain from this workshop, please pass on this reference to them. Instead of 5,000, it is going to be 1,999 POXO program, 5-day program, TTT, train the trainer. Thank you, Payal, for sharing that. And I would like to now open up the house. If anybody from the listeners has a question for Archana ji, please unmute yourself and ask, or you could type it in the chat and then I will read it out. Abhijit? We have Ajay Kumar Pandey sir today. It is अजय जी, अगर आप सुन रहे हैं तो जरा अनम्यूट करके कुछ शब्द बोलिए। Yes. Okay, in the meantime, there is a question from Satish Shenoy. He is asking, is the POSCO Act based on a law in the UK or the US or any other country, or is it drafted completely for India? Lots of countries, including Spain and all, had been taken, their law has been taken into consideration for drafting the POXO Act. But yes, it was done by Indians for India, and very well done, because Indian culture and Indian style of living has been taken into consideration in drafting the act. Any other question? So what sort of family support can the family members give to the child after knowing that he or she has been, either harassed or something wrong has been done with them? Okay, this is a very good question. I cover it in my workshop. Yes, this is the most important and most critical time. How you react when a child tells you, that affects that how the child will behave in future. It is very crucial how you react. First thing is, if a child tells you anything, right away, first thing you should do is you must not express any sorrow, any surprise or anger. Don't react like this. This is most crucial for you to understand and know. First thing. Second thing is,
show the trust in the child, give child a big hug and tell the child that you trust the child 100%. Talk to child, ask and tell the child that, tell in all detail what you want to tell. Let the child tell. After that, what you have to do is very important. Never say that you are not going to tell anybody. Never do it. It will confuse the child. Abuser uses these techniques 100% times. You must tell the child that the child should have courage and that it will be talked and taken action upon. Chances are sometimes it could be incest. Incest means first relative of the family, like, Yes. I'm sorry, but sometimes father or mother or cousins or siblings are doing it to the child. तो चाइल्ड मस्ट बी अफ्रेड कि वहां पे हमको मार पड़ेगी, हमको परेशान करेंगे, क्योंकि अक्सर वो पावर भी करते हैं बच्चे को। पर बच्चे से कहिए इसके बारे में, जान लीजिए उसका सेफ सर्किल कौन सा है उनमें से। बच्चे को बताना है कि हम उनसे बात करेंगे, पुलिस से इसको अरेस्ट करवाना जरूरी है और हम तुम्हारे साथ हैं और कुछ भी गलत नहीं किया है तुमने। बिकॉज बच्चे के मन में ये होता है, जब ग्रूम करता है अब्यूजर, वो बच्चे को गिल्ट ट्रैप में अक्सर डालता है। 90% टाइम्स वो गिल्ट ट्रैप में बच्चे को डाल देता है, तो बच्चा बता नहीं पाता है किसी को। तो उसको बताइए कि हम तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे, तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे, तुम्हारा साथ देंगे और इसको सजा होनी जरूरी है और उस पर एक्शन लीजिए। उस एक्शन के लेने पर से भले ही एक्शन में कुछ कमी रह जाए, लेकिन बच्चे का जो कॉन्फिडेंस आप दे देंगे बच्चे को, वो जिंदगी भर बच्चे का साथ देगा, उसकी पर्सनालिटी को ठीक करेगा। तो इन चीजों का जरूर ध्यान रखिएगा कभी भी। एक और सवाल मुझे आपसे पूछना था, एंड आई थिंक दिस इज रेलेवेंट टू वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम। 498 में जब केस होता है फैमिली कोर्ट में, जब केस डाइवोर्स के लिए जाता है, तो आजकल उन्होंने रिकंसिलिएशन कंपल्सरी कर दिया। पहले बैठिए, आप आपस में बात करिए, ट्राई एंड सॉर्ट आउट, और उसके बाद अगर नहीं होता है तो वी विल गो अहेड। क्या पॉक्सो में भी ऐसा है कि अगर किसी की कंप्लेन आई, पहले बैठेंगे, देखेंगे वाकई सही है कि नहीं, कि जस्ट बिकॉज कंप्लेन आई और हमको इसके ऊपर आगे बढ़ना है? और मैं ये इसीलिए पूछ रहा हूं, मेनी अ टाइम्स इन टीनेज जो बच्चे बढ़ रहे हैं, एक होता है मस्ती और एक होता है मतलब जो इंटेंट के साथ किसी को हैरेस करना। हाउ डू यू सेपरेट मस्ती फ्रॉम इंटेंट? ओके, अभी केतन जी का एक क्वेश्चन आया, वो भी हम लोग लेंगे, पहले आपका ले लें। मस्ती हो चाहे कुछ हो, nobody has right to invade your privacy. This is the rule. मस्ती में भी आप किसी की प्राइवेसी को इन्वेजन नहीं कर सकते हैं, तो वो भी वहीं पर कानून वही लगेगा जो गलत इंटेंशन के संग है, क्योंकि मस्ती का एक नियम होता है, तरीका होता है, उससे आगे फिर वो मस्ती नहीं रहती है, तो इसलिए वही कानून चलेगा। दूसरा आपका हिस्सा क्या था सवाल का? हाँ, एक तो ये था मस्ती, दूसरा वो क्या रिकंसिलिएशन होता है पहले आगे करने के? नहीं, रिकंसिलिएशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बच्चे का मॉरल डाउन होगा। क्यों रिकंसिलिएशन होना? जब गलत किया था उसको नहीं पता तो बच्चे के साथ कर रहा है। हाँ, टीन एज में जो आपने कहा है वो एक दूसरा इशू है। टीन एज में हार्मोनल डेवलपमेंट हो जाता है, और लेट मी टेल यू, इफ यू आस्क मी पर्सनली, आई इनकरेज children at teenage to be more communicative with each other. I don't find it wrong, but it has to be in a limit, because body is not ready for certain actions, and that should be told to teenager children. But it should not be discouraged, because it's a healthy biological action. This should not be discouraged, but in a limit and in a system where society and people are taken into account, and that should be told to teenagers when they are growing up, that how you should understand others also, give value to them. पर पॉक्सो एक्ट में ये कमी जो आ रही है, क्योंकि मेरे अभी एक केस है, एक लड़की है 17 साल की इस टाइम पे, जब वो 16 साल की थी, वो एक 21 साल के लड़के के संग इलोप हुई, लड़का जेल में चला गया, लड़की को हम लोग काउंसलिंग दे रहे हैं, अब उसका एक और से अफेयर चल रहा है, तो हमने कहा कि अभी एक और की तैयारी हो रही है जेल भेजने की। ये एक लॉ की प्रॉब्लम है, तो 16 साल से 18 साल के लिए एक डिफरेंट लॉ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो एक हार्मोनल एज है। वी शुड नॉट डिस्करेज द हार्मोन्स आल्सो, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, इसके लिए अलग लॉ होना चाहिए। इसके लिए आप लोग साथ देंगे, हम लोग मिलकर इसके बारे में आगे बात रखेंगे। पर हाँ, ये एक इशू है।
और दूसरी बात है, चेतन जी का जो आया था, हम उनका सवाल देख लेते हैं। हाँ, ये पूछ रहे हैं कि what are an abused child? What are the symptoms of an abused child when he or she is not sharing the hideous act? चेतन जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने, मेरे दिल के करीब है, क्योंकि यहीं पे ही सारा दारोमदार यहीं पे है। पहली बात तो हम लोगों को अपने बच्चों को कम्युनिकेट करके उनको बता देना उनके प्राइवेट पार्ट्स क्या है, प्राइवेट पार्ट्स की लिमिट्स क्या है। ये आप 3 साल के बच्चे को बता सकते हैं प्राइवेट पार्ट्स, सिंपल और रेगुलर लैंग्वेज में। उनको फूल पत्ती मत सिखाइएगा, रेगुलर बताइएगा जो आप लोग अपनी लैंग्वेज में यूज करते हैं प्राइवेट पार्ट्स के नाम। लेकिन हाँ, वल्गर वाले नहीं, जो गंदी गालियों के में यूज होते हैं, वो वल्गर वर्ड है, वो नहीं यूज होने। एक बार बच्चे को एजुकेट करके रखिए, बच्चे से बताइए कि ना तो किसी के प्राइवेट पार्ट वो देखे, ना किसी को अपने प्राइवेट पार्ट दिखाए, ना ही प्राइवेट पार्ट के नाम लेके मजाक उड़ाए किसी की, और ना ही अगर कोई मजाक उड़ाए तो उसको बर्दाश्त करे। यहाँ से शुरुआत होती है, जहां से हम लोग चेक करना शुरू कर सकते हैं, रोक सकते हैं इसको। उसके बाद अगर मान लो किसी के साथ हो रही है, 2-3 सिम्टम्स है जो ध्यान देने की जरूरत है। पहली बात तो ये है, हो सकता है बच्चा किसी बॉडी के पार्ट में, कोई जरूरी नहीं है कि जो जेनाइटल्स उन्हीं में ही कंप्लेंट कर रहा हो, बॉडी के किसी पर्टिकुलर पार्ट में भी वो पेन की कंप्लेंट कर सकता है। इट इज साइकोलॉजिकल ट्रॉमा दैट कॉजेज इट। तो हो सकता है कोई कंटिन्यूअस कंप्लेंट कर रहा हो सकता है बच्चे के गला खराब हो रहा हो बार बार, वो भी चेक करिए। अगर बार बार गला खराब हो रहा है तो हो सकता है उसके संग अब्यूज हो रही हो सेक्सुअल। इसके साथ हो सकता है किसी ब्लीडिंग वगैरह हो रही हो, इंटरनल ऑर्गन में कुछ डैमेज कहीं से डिटेक्ट हो पाए, ये सब सेक्सुअल अब्यूज के इंडिकेटर्स हो सकते हैं। इसके ये तो होते हैं फिजिकल जो दिख जाते हैं। एसटीडी हो जाए वो तो बहुत ऑब्वियस है, समझ में ही आ जाएगा। लेकिन जो इमोशनल डिस्टर्बेंस होते हैं, जो आइडेंटिफाइबल होते हैं मोस्ट ऑफ देम, उनमें से एक है कि अक्सर बच्चे का बिहेवियर में जो चेंज आता है, वो या तो बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगेगा, या उसको एकदम से एंजाइटी ज्यादा होने लगेगी। हो सकता है बच्चा ज्यादा डरने लगे एकदम से। कभी कभी क्या होगा कि बच्चे को स्लीपिंग डिसऑर्डर हो सकता है, ईटिंग डिसऑर्डर हो सकता है, इसके बाद शुरू हो जाए। स्कूल जाने से बचने लगे या स्कूल से आने से बचने लगे, ये भी हो सकता है। कैजुअली वो कुछ कंप्लेंट करे किसी के लिए, कि बहुत सिंपल कैजुअल उसमें करेगा, लेकिन उसको जरा बहुत अलर्ट होकर लीजिए। हो सकता है बच्चे को पढ़ाई में कमजोर होने लगे, ये भी इसकी वजह से होता है, सेक्सुअल अब्यूज की वजह से। और हो सकता है कि बच्चा या तो बहुत ज्यादा एंटी सोशल होने लगे, ये भी सेक्सुअल अब्यूज की वजह से होता है। वायलेंट बहुत ज्यादा होने लगे, ये भी सेक्सुअल अब्यूज की वजह से होता है। सेक्सुअल अब्यूज के बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स हैं, बहुत ज्यादा डैमेज पर्सनालिटी को करता है, और इनमें से कुछ ना कुछ बच्चे का आपको दिख ही जाएगा। इतने सारे बता दिए हैं, इसमें से कोई ना कोई चीज आपको दिख जाएगी। और सबसे ज्यादा जरूरी है, जो हम फॉलो करते हैं, सबसे रिक्वेस्ट करते हैं, डेली अपने परिवार के सब लोगों को गले लगाइए। स्पर्श से आधी हीलिंग होती है। गले लगा के डेली बच्चों से पूछिए, 2 मिनट जरूर दीजिए, चाहे जितने बिजी हो आप लोग, कि हम लोग जो है, आज तुम्हारा दिन कैसा बीता, तुम्हें क्या अच्छा लगा, और क्या चीज पसंद नहीं आई, ये भी पूछिए। माँ बाप को फिर उसके बाद इतनी सिक्स्थ सेंस होता है उनका कि वो पकड़ लेते हैं कि कहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। ये जो है थोड़े मोटे मोटे हैं, पर नॉट ऑल द टाइम, कुछ और भी हो सकते हैं। उसके लिए फिर इससे ज्यादा के लिए फिर आपको साइकोलॉजिस्ट वगैरह की जरूरत पड़ेगी। लेकिन जहां तक इतने में से हमेशा अभी तक जितना रहा है, निकल के आ जाता है प्रॉब्लम। और जब निकल के आ जाता है, हमने आपको बता दिया कि कैसे उसको डील करना है। और उसके बाद फिर बच्चे को प्रोटेक्ट करना, उसको सपोर्ट करना, वो सबसे बड़ा रोल है। अगर हादसा हो गया, उसके बाद क्या होता है। थैंक यू अर्चना जी। पिछले 70-80 मिनट से हम लोग बातें कर रहे हैं, कैसे टाइम निकल गया पता नहीं है। संडे है, दोपहर का टाइम है, लंच टाइम आ रहा है, लोग अभी तक बैठे हैं। आपसे इतनी अच्छी तरह से खुल के बात हुई है, पूरी चीज अच्छी तरह से समझ में आ गई है। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि आगे चल के किसी एक रिसेंट आगे चल के आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी, अच्छी तरह से और डिटेल में इस चीजों को समझेंगे, सो दैट नॉट ओनली हम समझ सकें, बट हमारे थ्रू ये मैसेज लोगों के पास जावे, जो अटेंडीज हैं, जो इस प्रोग्राम को फेसबुक लाइव पर देख रहे हैं, हमारे अपने फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स हैं, इन तक ये मैसेज जाए कि ऐसी कोई चीज है, इस कंडीशन में यूज हो सकती है,
इसको मिसयूज नहीं होना चाहिए। और सबसे पहले, एज दे से, चैरिटी बिगिंस एट होम। हमको अपने बच्चों को, अपने फैमिली मेंबर्स को अपने साथ मिलके, जैसे आपने कहा, एक हग जरूर दीजिए। समहाउ वो चीज चली गई है। मुझे याद है जब हम छोटे थे, तब जब स्कूल से आते थे या पापा घर आते थे, हम लोग हग करते थे। आजकल पता नहीं, शायद लोगों को शर्म लगती है या बच्चे बड़े हो गए हैं। हाय, हाउ आर यू, थैंक यू, बस उतना ही सुनाई देता है। हग करना और वो सब हम लोग बिल्कुल भूल गए हैं। आई थिंक that values have been lost. We need to bring our old selves back. We need to connect more with our family, with our children, with Yes. our friends. Thank you so much for raising this point कि हमको आपस में एक होना है। एक जादू की झप्पी देनी है हर एक फैमिली मेंबर को। प्रेमराज, ओवर टू यू फॉर क्लोजिंग। यस, थैंक यू दीपक। काला जी ने कोई मैसेज भेजा है, जरा देखेंगे आप लोग। हाँ हाँ हाँ, स्नेहा कला जी ने एक वो बताया कि लेट मी रीड दिस। हाँ, स्नेहा जी कह रही थी कि in the helpline that we run, we have seen that when teenage couple get caught by the parents, POCSO gets implemented on the boy. Yeah. Therefore, we surely need a separate section under this act or some sort of safeguard to be built in. Agree. True. ठीक है, फिर हम आप लोग का टाइम बहुत ले लिया है। नहीं, प्रेमराज ऑफिशियली क्लोज करेंगे। 1 मिनट के लिए रुकिए, एंड देन थैंक यू वेरी मच फॉर taking your time and making us aware about this section. Thank you so much. Archana, you're a crusader for social causes. The Thank presentation that you gave was very revealing. Thank you. We learned a lot of new things. For example, like your awesome. app, the app that you mentioned could be a game changer, and this needs to be widely publicized. You called out some of the cult leaders who are actually not leaders but misleaders. Yes. The nomenclature of safe and unsafe touch rather than good and bad touch was also very, very revealing and informative. Yes. We are blessed to have you in our midst. Thank you for sharing your mission in life with us. We salute you and wish you continued success in all your endeavors, while we look forward to having more association with Bloom. Thank you and God bless. Thank you.